Hi my dear student, I am back again after a long time, and in this video I will be solving with you some numerical problems from competitive examinations like JEE and NET, and the chapter's name is Some Basic Concepts of Chemistry. So let us start the video without wasting much time. The first problem I have written here, first problem is two oxides of a metal contain 36.4% and 53.4% oxygen by mass. If the formula of the first oxide is M2O, then what is the formula of the second oxide? The options are given here. So how we will solve this problem? Let's see. First of all हम लिखेंगे the formula of the first oxide, which is M2O. Now see, in the first oxide the percentage of oxygen is 36.4. Percentage of oxygen is equal to 36.4%. So what is the percentage of metal? Metal will be 100 minus 36.4. So it will be 63.6%. Now in the second oxide, oxygen is 53.4%. So metal will be 100 minus 53.4. So it will be 46.6%. Now the formula of the first oxide is M2O. So in this oxide there are two metal atoms and one oxygen atom, and the percentage of oxygen is 36.4. So we can write 36.4% oxygen means one atom of oxygen. Now how much oxygen is present in the second oxide? 53.4%. So 53.4% oxygen means how many atoms will be there? 53.4 divided by 36.4. So this comes 1.46 oxygen atoms. Next we will find out in the same manner the number of metal atoms in the second oxide. From the first oxide we can see that metal 63.6% metal is equal to 2 atoms of metal. So in the second oxide how much metal is there? 46.6%. So 46.6% metal means how many atoms of metal will be there? 2 by 63.6 into 46.6. So it is coming 932 divided by 636. This is again coming 1.46 atoms. So metal is to oxygen ratio will be what? Second oxide, metal is to oxygen, this ratio is 1.46 is to 1.46. So it is 1:1, and so formula of the second oxide will be MO. So which option is correct? Option B will be the correct option. In this question, students, they have said an element X has the following isotopic composition. 200 atomic mass वाला जो isotope है that is 90%, 199 atomic mass वाले 8%, 202 atomic mass वाले that is 2%. The average atomic mass we have to calculate. The average atomic mass of the naturally occurring element X is closest to. These are the options. तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास के साथ परसेंटेज एबंडेंस या तो फ्रैक्शनल एबंडेंस के साथ रिलेटेड फॉर्मूला है. तो ये फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ. सो दिस इज द फॉर्मूला. इन दिस फॉर्मूला ए बार indicates the average atomic mass is equal to summation A phi AI. A phi stands for fractional abundance and AI stands for atomic mass. So we will put the values 200 into परसेंटेज अबंडेंस को हमें फ्रैक्शनल अबंडेंस में लेना है. तो 90% को हम फ्रैक्शनल अबंडेंस में अगर ले लेंगे तो 100 से अगर आप डिवाइड करोगे 90 को देन इट विल बी 0.90 plus 199 into 8% means 8 by 100 means it will be 0.08 fractional abundance plus 202 into it is 2%, so 2 divided by 100 it will be 0.02. So after multiplying and adding all these we get 180 plus 15.92
प्लस 4.04, तो इन सबको ऐड करने से ये आ रहा है 199.96, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली हम इसे 200 ले सकते हैं. सो ये जो ऑप्शंस है हमारे, इन ऑप्शन में से व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 200 AMU. सो इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास हमने एलिमेंट X का कैलकुलेट किया. इन दिस प्रॉब्लम इट इज सेड if 10 to the power 21 molecules are removed from 200 milligram of carbon dioxide, then the number of moles of carbon dioxide left are. ये ऑप्शंस है. इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे कि 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद उसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास. मोल में कन्वर्ट करने के बाद हम उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है वो देख लेंगे, और उसमें से हमें 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स को माइनस कर देना है. तो जितना मॉलिक्यूल्स बचेंगे उनको हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड अगर करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा. सो लेट अस सॉल्व इट. 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स 0.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. मिलीग्राम से ग्राम में लेने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना है. सो 200 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.2 ग्राम आएगा. अब 0.2 ग्राम को हम मोल में लेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 0.2 by 44 बिकॉज मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम पर मोल. सो दीज मेनी मोल्स 0.2 by 44 moles means 0.2 by 44 into 6.02 into 10 to the power 23 molecules. So this upon calculation comes, ये आ रहा है 12.046 by 44 into 10 to the power 22. उसके बाद हमने इसको 10 to the power 21 के ऑर्डर में ले लिया. 10 to the power 21 के ऑर्डर में इसलिए लिया क्योंकि अभी हमें माइनस करना है 10 to the power 21 molecules from these many molecules. सो माइनस करना आसान हो जाएगा, इसलिए हमने इसको 10 to the power 21 के ऑर्डर में नंबर ऑफ molecules को ले लिया, कन्वर्ट कर लिया मतलब. सो नाउ नंबर ऑफ molecules left will be how much? 2.738 into 10 to the power 21 minus 10 to the power 21. So if you take 10 to the power 21 as common, then it will be 2.738 minus 1. So it will be 1.738 into 10 to the power 21. These many molecules. Now the last part is these many molecules are to be converted into number of moles. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? Number of moles of CO2 left ये हो जाएगा 1.738 into 10 to the power 21 divided by Avogadro number 6.02 into 10 to the power 23. So इसको डिविजन करने से ये हमारा आंसर आ रहा है 2.88 into 10 to the power minus 3 mole. So these many moles of carbon dioxide will be left. So इसमें से जो ऑप्शंस है उनमें से ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, 2.88 into 10 to the power minus 3 mole. Now in this question it is asked that 10 decimeter cube of nitrogen gas and 10 decimeter cube of gas X at the same temperature contains the same number of molecules. The gas X is, इनमें से आपको चूज करना है which gas is gas X. तो सी वॉल्यूम सेम है, 10 डेसीमीटर क्यूब 10 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है. सो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, दैट मीन्स दोनों गैस का मतलब नाइट्रोजन गैस का और जो गैस एक्स है इन दोनों का नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होगा, बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स में ही इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द गैसेस विल बी इक्वल. वी राइट हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस N2 and gas X will be equal, and so their molecular mass also will be same. Now nitrogen's molecular mass we all know it is 28 gram per mole. अब इनमें से देखिए कौन सा गैस है जिसका molecular mass 28 है, वो है CO. तो C का 12 है और ऑक्सीजन का 16, दोनों ऐड करने से ये हो जाएगा 28. So gas X will be which gas? It will be CO gas. So gas X will be CO since N2 and CO have same molecular mass. So we have solved this one. Now the next one.
In this problem it is asked how many moles of electrons weigh 1 kg. कितने moles of electrons का weight 1 kg है. So we all know the mass of electron is 9.108 into 10 to the power minus 31 kg. कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम मास को 9.108 का हम 9.1 लेते हैं मैक्सिमम केसेस में, 9.11 हम लेते हैं या तो 9.1 लेते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शंस में 9.108 एग्जैक्ट नंबर इज गिवन. सो हमें ये लिखना है. सो आंसर इसका इस तरह से होगा, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.108 into 10 to the power minus 31 kg. So mass of 1 mole of electron will be how much? 1 mole means how many electrons? Avogadro number of electrons. So Avogadro number must be multiplied with it. So 9.108 into 10 to the power minus 31 into 6.023 10 to the power 23. So ये दो नंबर को सेम ही रखते हैं, 9.108 इंटू 6.023 इंटू जो 10 की पावर्स है उनको ऐड कर देते हैं. सो 10 टू द पावर माइनस 8 हो जाएगा ये. तो ये हो गया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास दिस मच kg. सो नाउ वी कैन राइट 9.108 इंटू 6.023 into 10 to the power minus 8 kg is equal to 1 mole of electrons. इसी को ही थोड़ा सा उल्टा करके स्टेटमेंट को लिख दिया. सो 1 kg is equal to तब क्या होगा, 1 divided by 9.108 into 6.023 और 10 to the power minus 8 जो नीचे आना था उसको मैं ऊपर लेके जाती हूँ. तो ये हो जाएगा 10 to the power 8 these many moles of electrons. सो यही होगा आंसर इस क्वेश्चन का. अब ऑप्शंस को चेक कर लो. नंबर डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर. डेंसिटी वाटर का दे दिया गया है 1 ग्राम पर मिलीलीटर. तो 18 मिलीलीटर वाटर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करना है. ये ऑप्शंस है आपके. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर निकालेंगे. मास ऑफ वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू इट्स डेंसिटी. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी. सो इट विल बी 18 मिलीलीटर इनटू 1 ग्राम पर मिलीलीटर. सो ये हो रहा है 18 ग्राम. तो 18 ग्राम मीन्स हमें पता है इट इज 1 मोल ऑफ वाटर. और 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. सो हम लिखेंगे 18 ग्राम वाटर contains 6.02 into 10 to the power 23 molecules. अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले हम निकाल लें. उसके बाद इतने मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देने से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएगा. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये कितना होगा, 2 हाइड्रोजन एटम. आपको पता है हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. तो 2 हाइड्रोजन एटम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन. और ऑक्सीजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है. सो 8 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस. सो सम टोटल कितना हो गया था, 2 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का और 8 ऑक्सीजन एटम का. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया. सो इट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ यू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be how much, 10 into number of molecules that is 6.02 into 10 to the power 23. 10 अगर 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 6.02 into 10 to the power 24 इलेक्ट्रॉन्स. सो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये सी ऑप्शन करेक्ट है. दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स आई हैव सॉल्व्ड हियर in order to save little bit of time, very easy problems. So see, I am explaining to you. They are saying number of moles in 1 meter cube gas at NTP. ये ऑप्शंस है आपके. तो 1 मीटर क्यूब जो कि वॉल्यूम है SI यूनिट में, तो उसको पहले हमने किया में कन्वर्ट किया, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया. हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर. तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इसको हमने लिख लिया 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर. सो ये आ रहा है 1000 डेसीमीटर क्यूब. अभी हमें पता है
अल्टीमेटली हमारा मोटो है कि हम इसको लीटर में ले जाए, लीटर में ले जाने से हम इसको मोल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये आ रहा है 1000 डेसीमीटर क्यूब। अभी 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये बहुत सिंपल कन्वर्शन है, आप अपने आप ही देख सकते हो। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो 1000 डेसीमीटर क्यूब आया था इसको हमने लिख लिया 1000 लीटर। अभी लीटर में कन्वर्ट करने के बाद मोल में ले जाना बहुत ही आसान है। हमें पता है कि एनटीपी में 22.4 लीटर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 1 मोल। सो वही लिखा हमने 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल एट एनटीपी। सो 1000 लीटर मीन्स इतना मोल हो जाएगा 44.6 मोल। और ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ रहा है। उसके बाद अगला प्रॉब्लम है, इफ 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 20 ड्रॉप्स देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज। 1 ड्रॉप वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है और 20 ड्रॉप्स वाटर का वॉल्यूम बता दिया 1 मिलीलीटर। तो वाटर का डेंसिटी तो हम सबको पता है, इट इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये जो 20 ड्रॉप्स वाटर का जो वॉल्यूम है 1 मिलीलीटर, इसको हमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास में कन्वर्ट करना है। तो वही हमने किया, मास ऑफ 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर इंटू 1 ग्राम पर मिलीलीटर, दैट मीन्स इट इज कमिंग 1 ग्राम। अभी 20 ड्रॉप्स का मास अगर 1 ग्राम है तो 1 ड्रॉप का मास क्या होगा 1/20, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.05 ग्राम। अभी 0.05 ग्राम तो 1 ड्रॉप वाटर का मास हो गया है। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको मोल में लेना पड़ेगा। इसको मोल में लेने के लिए क्या करोगे, मास को वाटर का मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि 18 है, वो हमने किया। तो इतना मोल हो गया, तो इतना मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा वो दो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद ये आ रहा है 0.0167 इंटू 10⁻23। इसको फिर 1 पॉइंट करके एक्सप्रेस किया तो 10⁻21 हो रहा है। तो इतना मॉलिक्यूल्स हो रहा है। सो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन आ गया। सो इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स दे आर सेइंग 50 milliliter 10 normal H2SO4, 25 milliliter 12 normal HCl and 40 milliliter 5 normal HNO3 acid. They all are mixed together. Volume of the mixture was made 1000 milliliter by adding water. Now what is the normality of the resulting solution? तो यहाँ पे देखिए बाकी जो आपका HCl है, HNO3 है, ये तो मोनोबेसिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड अकेला जो है यहाँ पे डाइबेसिक एसिड है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, बिकॉज ये सारे कॉन्सेंट्रेशन जो है नॉर्मलिटी में है। अगर मोलरिटी में होता तो हमें उसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करने के बाद ही जो है जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर सकते थे। तो अभी हम सीधा नॉर्मलिटी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करेंगे। द फॉर्मूला अप्लाइड हियर विल बी N1V1 प्लस N2V2 plus N3V3 will be equal to N4V4. N4 is the normality of the final solution and V4 is the final volume. So N1V1 में हम पुट करेंगे 10 into 50 plus 12 into 25 plus 5 into 40 is equal to N4, जो कि हमें निकालना है, into वॉल्यूम आपको बता दिया है कि जो वाटर ऐड करके मिक्सचर का वॉल्यूम क्या किया गया था 1000 मिलीलीटर। सो V4 का वॉल्यूम 1000। सो 500 प्लस 300 प्लस 200 इज इक्वल टू N4 इंटू 1000। सो ये ऐड करने से आपका 1000 हो जाता है इज इक्वल टू N4 इंटू 1000। सो N4 normality of the final solution will be 1000 divided by 1000, so it will be 1 normal. तो आंसर आपका है फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। Now in this question they are saying that 25.3 gram Na2CO3 is dissolved in enough water to make 250 milliliter solution. If Na2CO3 dissociates completely, then the molar concentration of sodium ion, कार्बोनेट आयन आर, ये ऑप्शंस है आपके सामने। और सोडियम कार्बोनेट का आपको मोलर मास भी दे दिया गया है। तो पहले तो हम इसका मोलरिटी निकालेंगे, ये सॉल्यूशन का मोलरिटी निकलने के बाद आपको मैं बताऊंगी कि व्हाट विल बी द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन इन द सॉल्यूशन वेयर NO2CO3 हैज बीन सपोज्ड टू बी डिसॉल्व्ड कंप्लीटली। तो सी दिस मच ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट and this is the molar mass. So number of moles of Na2CO3 will be equal to
25.3 divided by 106 is many moles. Now molarity, we all know molarity is equal to number of moles divided by volume of the solution in liter. So number of moles is 25.3 divided by 106 divided by volume आपका है 250 मिलीलीटर. 250 मिलीलीटर को हमें लेना पड़ेगा लीटर में, so we have to divide it by 1000. So 1000 goes up, so 250. 25.3 by 106 divided by 250, 1000 ऊपर चला जाएगा. So इससे इसको कैंसिल करो, it will be 4 and 106, 2 2s are 4 and 5 3, so it will be 25.3 multiplied by 2 divided by 53. ये आ रहा है 50.6 divided by 53. So this upon calculation comes 0.955 molar. So सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का मोलारिटी हमें मिल गया, इट इज 0.955 मोलर. सो एज यू नो दैट सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में ये डिसोसिएट करते हैं, तो प्रोड्यूस करते हैं 2Na+ आयन प्लस CO3 -2 आयन. तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल जो है 2 मोल सोडियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, 1 मोल कार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करते हैं. दैट मीन्स इसका जो कंसंट्रेशन है, सोडियम कार्बोनेट का जो कंसंट्रेशन है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन उसका डबल हो जाएगा सॉल्यूशन में, और कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन सोडियम कार्बोनेट का कंसंट्रेशन के साथ इक्वल रहेगा. सो वी राइट कंसंट्रेशन ऑफ Na+, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स इट विल बी 2 into molar concentration of Na2CO3, so it will be 2 into 0.955, this much molar, 1.910 molar, and carbonate ion concentration will be the same as concentration of Na2CO3, and so it will be 0.955 molar. So this is the concentration of Na+ and this is the concentration of carbonate ion. So which option will be correct? Option C will be the correct option. ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में बताया गया है कि a 100 milliliter solution of 0.1 normal HCl was titrated with 0.2 normal sodium hydroxide solution. Titration was discontinued after adding 30 milliliter NaOH solution. तो that means आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.2 नॉर्मल, वो कितना ऐड किया गया था 30 मिलीलीटर. तो पहले तो हम फाइंड आउट कर ले कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन जो कि 0.1 नॉर्मल HCl है, उसका कितना वॉल्यूम को ये जो 0.2 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 30 मिलीलीटर है उसने न्यूट्रलाइज कर दिया. 30 मिलीलीटर 0.2 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम 0.1 नॉर्मल HCl को न्यूट्रलाइज किया. उसके लिए हम यहाँ पे इक्वेशन जो इस्तेमाल करेंगे दैट इज N1V1 इज इक्वल टू N2V2. सो 0.1 नॉर्मल HCl है, इसका कितना वॉल्यूम को 0.2 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के 30 ml ने न्यूट्रलाइज किया. 0.2 into 30, so V1 is equal to 0.2 into 30 डिवाइडेड बाई 0.1, पॉइंट हटा दो, सो इट विल बी 60 मिलीलीटर. तो 100 मिलीलीटर में से 60 मिलीलीटर HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया 0.2 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड के 30 मिलीलीटर. अभी कितना रह गया? HCl सॉल्यूशन लेफ्ट अनन्यूट्रलाइज्ड इज इक्वल टू 100 minus 60, दैट मीन्स 40 मिलीलीटर. अब नेक्स्ट जो टाइट्रेशन को डिसकंटिन्यू किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिसकंटिन्यू करने के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिसका नॉर्मलिटी 0.25 नॉर्मल है, उससे फिर टाइट्रेशन किया गया रिमेनिंग HCl सॉल्यूशन को जो कि न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया था. तो वो तो हमने निकाल लिया 40 मिलीलीटर 0.1 नॉर्मल HCl अभी भी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, तो इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा 0.25 नॉर्मल KOH से. तो KOH का वॉल्यूम हमें निकालना है. अगेन हम यूज करेंगे उसी इक्वेशन को N1V1 इज इक्वल टू N2V2. सो N1V1 इज इक्वल टू N2V2. तो इसमें जो है 0.1 नॉर्मल और वॉल्यूम ऑफ HCl लेफ्ट इज 40 मिलीलीटर इज इक्वल टू KOH सॉल्यूशन का जो नॉर्मलिटी है वो है 0.25 नॉर्मल.
इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। सो V2 हो जाएगा 0.1 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 0.25। सो ये आ जाएगा 4 ऊपर में मल्टीप्लाई करने से डिवाइडेड बाई 0.25। सो 400 बाई 25 ये आ जाएगा 16 मिलीलीटर। सो दिस विल बी द आंसर कि KOH सॉल्यूशन जिसका नॉर्मलिटी 0.25 नॉर्मल, उसका 16 मिलीलीटर चाहिए जितना अनन्यूट्रलाइज्ड HCl था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो ऑप्शन D is the correct answer here. Now we will solve this problem. Suppose two elements X and Y combine to form two compounds XY2 and X3Y2. When 0.1 mole of XY2 weighs 10 gram and 0.05 mole X3Y2 weighs 9 gram, the atomic weights of X and Y are. ये आपके ऑप्शंस है। तो इसमें पहले हम सपोज कर लेंगे कि X और Y का एटॉमिक मासेस we suppose it is M1 and M2, and then we will get ultimately two equations, and then we can solve those two equations for getting the value of M1 and M2. So let us suppose the atomic weight of X is equal to M1 and the atomic weight of Y is equal to M2. Now first they have said 0.1 mole of XY2 weighs 10 gram. So 0.1 mole XY2 weighs 10 gram. So 1 mole weighs how much? 10 by 0.1, so it will be 100 gram. So 1 mole का मास जो है XY2 का 1 mole का मास है 100 ग्राम। तो हमें मोलिकुलर मास XY2 का जब पता चल गया तो हम इक्वेशन ये बना सकते हैं कि M1 प्लस 2M2 इज इक्वल टू 100। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 सपोज। उसके बाद सेकेंड हमें बोला है कि 0.05 मोल X3Y2 weighs 9 ग्राम। 0.05 मोल X3Y2 weighs 9 ग्राम। सो 1 मोल weighs how much? डिवाइड करो 1 मोल के लिए 9 बाई 0.05, ये हो जाएगा 900 बाई 5, so it will be 180 this much ग्राम। तो X3Y2 का मोलिकुलर मास हमें मिल गया 180। सो X3Y2 में उसी तरह से हम जो है इक्वेशन एक बना लेंगे, X का एटॉमिक मास M1, Y का एटॉमिक मास M2। सो वी कैन राइट 3M1 प्लस 2M2 is equal to 180. Let us suppose this is equation number 2. Now in order to solve the value of M1 and M2 हम क्या करेंगे, नंबर 2 से नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो अगर हम 2 माइनस 1 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3M1 प्लस 2M2 इज इक्वल टू 180 और M1 प्लस 2M2 इज इक्वल टू 100। सो माइनस कर दो तो ये कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा है 2M1 इज इक्वल टू 80। सो M1 आपका आ रहा है 80 बाई 2, so it is coming 40. Now put the value of M1 in equation 1. Putting the value of M1 in equation 1, we get 40 plus 2M2 is equal to 100. So 2M2 is equal to 100 minus 40, तो ये हो जाएगा 60. So M2 हो जाएगा 30. तो ये आपके आंसर्स है, M1 is equal to 40, M2 is equal to 30। ये आपके आंसर्स है। सो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। अब हम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बताया गया है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन्स 20% नाइट्रोजन। इट्स मिनिमम मोलिकुलर मास विल बी, इनमें से चूज करना है। तो मिनिमम मोलिकुलर मास अगर फाइंड आउट करना है तो उसमें हमें यही सपोज करना पड़ेगा कि उसका एक मॉलिक्यूल में कम से कम एक नाइट्रोजन एटम तो होगा। ठीक है, सो नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 20%। दैट मीन्स 100 ग्राम जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें 20 ग्राम है नाइट्रोजन। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे कि 20 ग्राम नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम कंपाउंड। सो 1 gram will be present in 100 divided by 20 gram, and so
वन नाइट्रोजन एटम का मास कितना है 14 ग्राम, सो 14 ग्राम नाइट्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन हाउ मच 100 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 20। तो 20 और 100 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 5 आ जाता है, सो इट विल बी 70 ग्राम। सो वन नाइट्रोजन एटम जिसका मास 14 ग्राम है वो कितना अमाउंट ऑफ कंपाउंड में प्रेजेंट होगा 70 ग्राम में। सो 70 ग्राम शुड बी द मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। बोल रहा है कि एन अल्कलॉइड कंटेन्स दिस मच परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन and its molecular mass is 162. The number of nitrogen atoms present in one molecule of the alkaloid is, ये ऑप्शंस है। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज में नाइट्रोजन का अमाउंट बताया और मोलिकुलर मास भी बता दिया। तो लेट अस सपोज नाइट्रोजन एटम के नंबर अगर x है तो नाइट्रोजन का मास कितना होगा मोलिकुलर मास में। मोलिकुलर मास आपका 162 है, तो अगर x नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है तो इसका मास होगा 14 इंटू एक्स। तो 14 इंटू एक्स, ये जो नाइट्रोजन है इतना अमाउंट नाइट्रोजन कितना में प्रेजेंट है, कितना मास में प्रेजेंट है 162 ग्राम में प्रेजेंट है। तो 100 ग्राम में जितना प्रेजेंट होगा वही तो है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, और वो परसेंटेज हमें दे दिया गया है। तो ये दोनों को इक्वल करने से एक्स की वैल्यू आ जाएगा। तो वी राइट हियर लेट अस सपोज नंबर ऑफ एन एटम्स इज इक्वल टू एक्स। सो मास ऑफ नाइट्रोजन इन 162 ग्राम जो कि मॉलिकुलर मास वो हो जाएगा 14 इंटू एक्स। देन मास ऑफ नाइट्रोजन इन 100 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 14x डिवाइडेड बाई 162 इंटू 100। तो यही है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ये दे दिया गया है हमें 17.28। सो हम इसको इक्वेट करते हैं 14x इंटू 100 divided by 162 is equal to 17.28 और 1400x is equal to 162 into 17.28। तो x is equal to 162 into 17.28 divided by 1400। तो ये आ रहा है 1.999 which is approximately 2। तो in one molecule there are 2 nitrogen atoms in the alkaloid। so कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। This is the last problem students। in this problem they have said the crystalline salt Na2SO4 dot X molecule of water on heating loses 55.9% of its weight। formula of the crystalline salt is, ये ऑप्शंस है आपके। तो इसमें कैसे हम निकालेंगे X की वैल्यू। तो सबसे पहले हमने जो है एनहाइड्रस जो सोडियम सल्फेट है उसका मोलिकुलर मास को कैलकुलेट कर लिया और ये आ रहा है 142 ग्राम। तो अब देखिए आपको बोला है कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट जब हीट किया जा रहा है तो 55.9% इसका वेट लॉस हो रहा है। दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल तो हीट करने से इवापोरेट हो ही जाएगा, निकल जाएगा। दैट मीन्स 100 ग्राम में से वाटर कितना है 55.9 ग्राम है। तो एनहाइड्रस सॉल्ट तब कितना है 100 में से 55.9 माइनस कर दो 44.1 ग्राम हो जाएगा एनहाइड्रस सॉल्ट। तो इसमें हमने कैलकुलेशन इस तरह से किया कि 44.1 ग्राम एनहाइड्रस सॉल्ट में वाटर कितना है 55.9 ग्राम है। तो 142 ग्राम जो कि एनहाइड्रस सॉल्ट का मोलिकुलर मास है उसमें कितना वाटर होगा। तो ये कैलकुलेशन है देखो 55.9 बाई 44.1 इंटू 142। तो इसका कैलकुलेशन से आएगा 179.99 ग्राम एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 180 ग्राम। तो ये तो हो गया मास ऑफ वाटर। हमें मास ऑफ वाटर तो नहीं चाहिए, हमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए। तो टोटल मास ऑफ वाटर जितना है 142 ग्राम में, तो उसको अगर हम वाटर का मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो वाटर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा। वही हमने किया है 180 बाई 18 तो आ रहा है 10। So 10 molecules of water of crystallization will be there in the hydrated salt. So formula हो जाएगा ये Na2SO4 dot 10 molecules of water and option D will be the correct answer. So here I end this video. In this video I have solved all total 15 questions from JEE and NEET type competition focused numerical problems from the chapter basic concepts of chemistry.
I hope you have learnt a lot from this video, and now you can attempt this kind of competitive numerical problems and you can solve them also. Please subscribe my channel. Link of the channel will be given in the description box. In my next video, I will be exclusively solving the NEET numerical problems from this same chapter only. Please subscribe the channel and help this channel to grow. Thank you for watching the video.